أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon to all the students of BSc second year. Uh, you are able to listen me now? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. We are going to start the chapter. Uh, in last lecture we have summarized, we have studied about the syllabus of BSc second year, paper 10, that is inorganic chemistry. Now let us march toward the first chapter, that is the chemistry of elements of first transition series. Chapter is not new for you. At 12th standard you must have studied this chapter in detail. Now this is the syllabus. What points are to be picked up from the book, those are discussed here. General characteristic features of d block elements, properties of the elements of first transition series, which properties are to be discussed, studied: ionic size, atomic size, then metallic properties or metallic character, ionization potential, magnetic property, and oxidation state. While studying this chapter, these properties should be taken into consideration. Okay. Now come to the rough sketch of the periodic table. This is the periodic table. On the extreme left side of the periodic table, there are S block elements. There are electropositive elements. Elements like hydrogen here first. First element with atomic number 1, hydrogen here. On the extreme right, here there are P block elements. Okay. On the extreme left, there are S block elements. On the extreme right, there are P block elements. And in between S block and P block elements, there are D block elements or transition elements. And below this are two two lines which you are able to see. These are F block elements. One is lanthanides, other is actinide. First series lanthanides, other series is actinides. Okay, in this way, this is the sketch of the periodic table. There are 118 elements, 118 elements. Now horizontal rows are there, which are called as periods. Now vertical columns, whatever are there, they are called as groups. There are 18 groups in the periodic table. These are the columns called as groups. These are called as groups. There are 18 groups here and 7 periods: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. In this way, horizontal rows, which are called as periods, 7 periods, columns, which are called as groups. There are 18 groups. The first element, atomic number is 1, that is hydrogen. And last element is organosine with atomic number 118. Now, first 94 elements, they are naturally occurring.
and after 95 to 118 they are artificially prepared. Here below line whatever elements they are most of F block elements, they are prepared by radioactive disintegration or radioactive bombardment. By some sort of bombardment of protons, neutrons, they are prepared. So element after uranium they are called as transuranic elements. Uranium के बाद के जितने elements है those are called as transuranic elements. They are prepared by radioactive disintegration, and they are prepared artificially. Okay, this is again periodic table, rough sketch of the periodic table. This is first group, second A group, third B group, fourth B group. Okay, and so on. This is lanthanide, this is actinide, this is first transition series, this is second transition series, this is third transition series, this is fourth transition series. Now here are the our alkali metals, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है. और ये साइड में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. Electronegative elements means which has power to attract electron towards themselves. Electropositive means which can donate electron. ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. जैसे हम देख रहे हैं Li प्लस बनता है. किस तरह से बनता है? By releasing one electron it will become Li plus. By releasing one of the electron it will become Li plus. Na plus. By releasing one of the electron it will become Na plus, and so on. So these are electron releasing. Okay, so these are called as electropositive elements. On the extreme left there are electropositive elements, और ये halogens जो है these are called as electronegative elements. They have power to attract electron towards themselves. They have tendency to attract electron towards themselves. So position of this transition element is in between. ये दोनों के बीच में है. ये दिख रहे जो आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और ये साइड में जो दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये दोनों के बीच में है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दोनों के बीच में, इंटरमीडिएट इन बिटवीन. Their properties are intermediate in between electropositive and electronegative elements. Okay, what are D block elements or transition elements? First of all, see. Transition elements I have explained. The elements which are in between S block and P block, they are called as the transition elements. So there are 4 transition series we see here. Now what are D block elements? The elements in which the last electron enters into d orbital of the penultimate shell. Penultimate means n minus 1 shell. ठीक है, n minus 1 shell, inner to ultimate shell. N minus 1 shell, it is called as penultimate shell. The electron in which the last electron कहाँ enter करता है? d orbital of the penultimate shell. Last but one shell, that is called as n minus 1 shell orbital. This is called as penultimate shell. Okay, inner to ultimate shell, that is called as a penultimate shell. मजा नहीं आ रहा. Okay, the elements in which electron enters into d orbital means in these
एलिमेंट्स डी ऑर्बिटल इज प्रोग्रेसिवली फिल्ड। ये एलिमेंट्स के अंदर में क्या होता है, डी ऑर्बिटल की फिलिंग अप होती है। ठीक है, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, कितनी है कैपेसिटी डी ऑर्बिटल की, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन इट अकोमोडेट, इट कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो D1 से ये ऑर्बिटल भरना शुरू होती है D10 तक। ठीक है, मीन्स दिस एलिमेंट्स इन्वॉल्व प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे फिलिंग अप ऑफ द डी ऑर्बिटल। एलिमेंट्स लाइक जिंक, जिंक के अंदर में क्या होता है कि ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है। ठीक है, और डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि ऑर्बिटल शुड बी प्रोग्रेसिवली फिल्ड, प्रोग्रेसिव फिलिंग अप होना चाहिए। What problem is there? Yes. क्या जेवण ते मोबाईल रे मोबाईल ఇది बंद కూడా कर తాత విచ్చిమని తాత విచ్చప్ सो एलिमेंट्स लाइक झेडन जिंक एलिमेंट के अंदर में ये ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल्ड है, देयरफॉर इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन उसके प्रॉपर्टीज बचे हुए जो एलिमेंट्स है उनके जैसे है, जो 10 एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनके प्रॉपर्टीज उसके जैसे है, इसलिए अपन उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर लोकेटेड इन बिटवीन S block elements electropositive and P block electronegative elements। ठीक है, पोजीशन S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में है। दे कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, इसमें ज्यादातर मेटल्स हैं। D block elements are called as transition elements because their properties are intermediate in between S block and P block elements, दोनों के बीच में है। There are 4 series of D block elements. First is 3D, 4D, 5D एंड 6D। 3D मीन्स इसमें 3D ऑर्बिटल की फिलिंग अप होगी, 4D ऑर्बिटल की फिलिंग अप होगी, यहाँ पर 5D और यहाँ पर 6D। ठीक है, तो 3D सीरीज के बारे में देखते हैं। 3D सीरीज के अंदर में सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, उसके बाद है टिटेनियम, उसके बाद है वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये पहली सीरीज है हमारी, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस और आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, वी हैव टू स्टडी दिस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स दे आर फिल्ड अप हियर, ये स्लाइड को हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। ये पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है 21। ठीक है, सेकंड एलिमेंट है टिटेनियम, एटॉमिक नंबर 22। ठीक है, वेनेडियम थर्ड है 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25। ठीक है, इस तरह से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे हमें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद में 3d1 और 4s2। और एक बार मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एलिमेंट्स बता देता हूं आपको। उसके बाद है आयरन 26, उसके बाद है कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और ये जिंक 30। ये 30 के अंदर में देख रहे हैं कि दिस ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड है।
इसलिए जिंक को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज जो बचे हुए 9 एलिमेंट्स हैं हमारे, दे आर सिमिलर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, देयरफॉर वी क्लासिफाई इट एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखना है। तो दिस इज द अफबू प्रिंसिपल फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरह से लिखा जाता है उसके लिए प्रिंसिपल है, कॉल्ड एज अफबू प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्रिंसिपल। तो देखिए, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन हम अकोमोडेट कर सकते हैं, वी कैन फिल अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 2s के अंदर में, उसके बाद 2p के अंदर में, उसके बाद 3s के बाद में आप जाएंगे 3p की तरफ, 3p के बाद 4s की तरफ, और 4s के बाद जाएंगे 3d की तरफ। ये याद रखिए, 3p के बाद में 3d नहीं आ रहा है, यहाँ 3p के बाद में 4s आ रहा है। ठीक है, दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और 4s के बाद 3d आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद के एलिमेंट्स, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1s2 है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये एरोगॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 एटॉमिक नंबर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3p6 तक यहाँ तक चलेंगे। हम इसके आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एरोगॉन लिखना है तो लिखो, या बेटर ये है कि आप ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख लें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d1। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 21st इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, उसके बाद 22nd इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये 23rd इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, 23rd इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, और 24th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, 3d4 4s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 3d4 एंड 4s2, इस तरह से रहना चाहिए, बट इट इज फाउंड टू बी 3d5 एंड 4s1। दिस इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रिलेटेड विथ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। देखिए, यहाँ पर 3d4 अगर हम ले रहे हैं तो d ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है, 10 है। अगर 3d4 और 4s2 ले रहे हैं तो यहाँ पर ये 3d5 हाफ फील्ड नहीं हो रही है, और ये 3d और 4s ऑर्बिटल की एनर्जी तकरीबन बहुत कम डिफरेंस है दोनों के अंदर में, डिफरेंस इज वेरी लेस। और ये इलेक्ट्रॉन एक थोड़ा सा हम यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, बाय ट्रांसफरिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू दिस विल अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहाँ पर हम 3d5 कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, 3d4 और 4s2 के बजाय इंस्टेड ऑफ दिस वी राइट 3d5 और 4s1। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो रही है, d की कैपेसिटी कितनी, 10 के आधा 5 हो गया, 3d5 हो गया, 3d5 4s1। ठीक है, उसके बाद मैंगनीज 3d5 4s2। फिर आयरन की तरफ आते हैं हम, 3d5 हो गया था, ये 3d6 4s2, 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2। फिर ये कॉपर के अंदर में जाकर वही प्रॉब्लम आ जाता है 3d9 और 4s2 की तरफ, 3d9 4s2। फिर ये 3 बाय ट्रांसफरिंग वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हियर वी विल अचीव हियर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं d ऑर्बिटल के अंदर में तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है यहाँ पर, ड्यू टू फुल फील्ड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल फुल हो जाएंगी, d की कैपेसिटी पूरी हो जाएंगी, और दैट विल बी नाउ हियर कॉपर विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, और उसके बाद जिंक
10 4s2। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे हैं। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाम लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। सिंपल है लेकिन याद रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आगे जाके सारी चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड करें। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद है तो आप उसके ट्रेंड्स वगैरह बता सकें। ठीक है, ये अबू प्रिंसिपल के बारे में बता दिया। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? दीज एलिमेंट्स दे शो मेटेलिक कैरेक्टर। इनकी खासियत यह है कि वो मेटेलिक कैरेक्टर बताते हैं। क्या है मेटेलिक कैरेक्टर? दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल यानी, यस, व्हाट डू मीन बाय मेलेबल? मेलेबल का क्या मतलब होता है? They easily melt. नो नो, malleable means by hammering them they can be changed into sheet। इनको ठोक कर हम पतरा उसकी शीट बना सकते हैं, दैट विल कॉल द malleable। ओके, malleable means by hammering they can be changed into sheet। ठोक कर हम उसको पतरा बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज malleable। डक्टाइल, डक्ट मीन्स तार, जिसको ठोक कर हम तार बना सकते हैं, उसको खींचकर फोर्स अप्लाई करके हम उसके अंदर में तार बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टाइल। मेटेलिक कैरेक्टर है, मेलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छी कंडक्टिविटी है इसमें, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती भी अच्छी है। ठीक है, क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटेलिक कैरेक्टर में क्या आ रहा है? ये सारी चीजें आगे, मेलेबल, डक्टाइल, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं? कलर आयंस फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने कॉपर के अंदर में देखा है, कॉपर का कैसा कलर है? कॉपर का ब्लू कलर है। मैंगनीज अगर देखते हैं तो तकरीबन पिंक कलर है। निकल वगैरह का अगर आप देखते हैं थोड़ा सा ग्रीन कलर है। ठीक है, इस तरह से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट दे आर कलर्ड एलिमेंट्स, और उनके आयंस ये सभी कलर्ड है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, उसके अंदर में अलग अलग कलर्स है। alloy formation in d block elements, alloy formation means they form mixed metal, alloy means mixed metal, दूसरे मेटल के साथ में हम उसको मिक्स करके एक नया मेटल फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज alloy। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज alloy। ये मेटेलिक कैरेक्टर में ही आता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ alloys, दिस डी ब्लॉक एलिमेंट दे फॉर्म alloys। देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, डी ऑर्बिटल इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, डी ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए दूसरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, जो खाली डी ऑर्बिटल है, ये खाली डी ऑर्बिटल के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल जो कुछ बचे हैं उसके अंदर में ये these empty d orbitals can accept the electron from electron donor atoms। कोई इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, ठीक है, इनकी तरफ से अगर कोई डोनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म सम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट दे एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। जैसा निकल देख रहे हैं हम इसके अंदर में, वेनेडियम देख रहे हैं, दे कैन एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। व्हाई? बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। हमने देखा है अभी कि उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स यानी क्या बता रहे हैं अपन? डी ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी कितनी है? 10, यानी 5 डी ऑर्बिटल्स है। 5 डी ऑर्बिटल के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी 4 ऑर्बिटल्स अभी जो है वो बाकी है। तो दोस एम्प्टी ऑर्बिटल दे कैन अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन। तो जो अभी 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। और कैटालिसिस प्रॉपर्टी भी इसीलिए बताता है, दे हैव टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर एन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। They are attracted toward the magnetic field. Paramagnetic behavior means they are attracted by the magnetic field. Why? Because they have unpaired electrons. ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, these are the general properties of d block elements. They show metallic character. मेटेलिक कैरेक्टर में क्या है, मेलेबल, डक्टाइल, कंडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ करंट, हीट एंड गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छी मजबूती होती है उनके अंदर में। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर्ड आयंस फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर होते हैं। अलॉय फॉर्मेशन, मिक्स मेटल फॉर्म होते हैं, दूसरे मेटल के साथ में अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो अच्छा मेटल और फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरे आयंस के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट दे एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। क्यों? वाई? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है और उसके साथ में दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके पास अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वो बता सकते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयंस दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। क्यों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताते हैं? बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, if you have any problem you may ask. Do you have any problem, any No, difficulty? sir. No, sir. No. No, sir. Okay, thank you, then let us stop here. Okay.